हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। क्या आप तैयार हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने के लिए? अगर हाँ तो फटाफट से अपनी नोटबुक्स और जो भी चीज आपके पास नोट्स बनाने के लिए है, एक पेन साथ में लेके आ जाओ। और हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, विच इज द फोर्थ प्रोसेस in aerobic respiration, and this is the main reason why aerobic process is taking place. Okay, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो मेन रीजन है जिसकी वजह से जो पायरुवेट है वो फर्मेंटेशन में नहीं जाता बल्कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सबसे पहले आता है इसमें व्हाट। हम याद रखिए किसी भी प्रोसेस को चार बेसिस पे पढ़ते हैं: व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हाउ। सो व्हाट यानी क्या हो रहा है? व्हाट इज यूजिंग द coenzyme, these FMN, ubiquinone, cytochrome, these are coenzymes, a group of coenzymes reduced, oxidized, done with everything, played like फटाफट से, और that is removal of proton, formation of a proton gradient and removal of electrons। यहां इस NADH के पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कब हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस में भी हुआ था, लिंक रिएक्शन में भी हुआ था, और क्रैब साइकिल में भी हुआ था, एक चीज। और FADH2 इधर, ठीक है, इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। यहां पे भी तो FADH2 के पास भी क्या है? प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन सबको ठिकाने लगाने के लिए, उन सबके को टू मूव आउट ऑफ द सिस्टम से बाहर करने के लिए फाइनली वाटर बनाते हुए ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। क्लियर विद दिस? दिस इज व्हाट। व्हाई क्यों होता है? ताकि जो 2H पॉजिटिव है इनको ATP सिंथेसिस के लिए यूज किया जा सके। क्लियर विद दिस? ताकि इनको ATP सिंथेसिस के लिए यूज किया जा सके। देन दिस इज एक्चुअली वी कैन से कॉल इट a shuttle system. Okay, then we have where it is taking place in inner mitochondrial membrane, and this inner mitochondrial membrane have sides. Which sides? The side which is present on the inner side, or you can say which is in contact with the mitochondrial matrix, is known as M side, and outer one which is touching or connecting the inner membrane space, and here present the outer membrane. So this is matrix, this is membrane, inner membrane, this is inner membranous space, and this is outer membrane of the mitochondria। और जो इस साइड प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं C side of the membrane। So as you can see, the hydrogen are moving outside in the inner membrane space from the matrix toward this Krebs cycle was taking place in matrix. The production of FADH2 and NADH was taking place, and because of this, the hydrogen are now to be removed out, और यही चीज हो रही है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। Clear with this? Now back on to where you have known it is present on inner mitochondrial membrane। how, तो how का प्रोसेस ये कंप्लीट है, जिसको हम पढ़ लेते हैं अभी फटाफट से। क्या है इसमें, क्यों है, कैसे है और क्या होता है। दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेन 4 complexes। complex number 1, not complexes, before complexes we have what are the things, complete things that are involved. One is flavins, second are iron sulfur complexes, then we have quinones, or you can say quinines, and fourth we have our cytochromes। 4 चीजें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। दिस इज FMN और फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, दिस इज आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, दीज आर quinones, and most common quinone is ubiquinone। Most common quinone are ubiquinones, and we have the cytochrome. So how many type of cytochromes are present?
cytochromes are present: cytochrome B, cytochrome C, cytochrome C3, cytochrome A, and cytochrome A3. These are 5 type of cytochromes present. What are the condition of cytochromes? Cytochrome have iron predominantly, which means it is stabilized by Fe, and Fe will be used to receive electron and donate electron in forms of, देख लीजिए अभी जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है Fe जो है वो 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. इट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, and when we see the removal of electron, it is backed reduced into, or you can say oxidized, okay, it is oxidized into Fe3 positive. Clear with this? Am I clear up till now? Then we have the 4 complexes which are present, which is the very first is complex number 1. One thing more, this cytochrome A3 particularly have copper. As you can see, this A3 have copper, which is responsible for carrying out a process named formation of dihydrogen monoxide. Dihydrogen monoxide, very dangerous chemical, you know, rusting of iron. Clear with this? Nausea, vomiting, completely disturbing for the body if present in above or low conditions. And you know what? If a person tries to de-addict itself from the addiction of this dihydrogen mononucleotide, this is dangerous and certainly cause death. तो ये कॉपर जो होता है ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको फाइनली मिलते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को 2H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, इसके साथ मिल जाता है हाफ O2 यानी 1 ऑक्सीजन एटम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, and finally make what? The very dangerous chemical. It is dihydrogen monoxide. Dihydrogen monoxide. ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इससे डरेंगे नहीं. We will try to fight with this. And we have now 4 complexes present. What are the 4 complexes which are present in this electron transport chain? See, whenever we talk about electron transport chain, यहां इसके बाद में 2 चीजें इसको फॉलो करती हैं. अभी बता देता हूं. 2 things follow the electron transport chain. It is followed by chemiosmotic hypothesis, which is प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. ना सिर्फ रेस्पिरेशन में, ना सिर्फ फोटोसिंथेसिस में, बल्कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है वो काम करती है रेस्पिरेशन में भी. सो ये जो 2H पॉजिटिव है ना, इनका काम ही यही है कि ये केमी हाइपोथेसिस में एंटर करेंगे, F0 F1 कॉम्प्लेक्स जो एटीपी सिंथेटेज के कॉम्प्लेक्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, एंड फाइनली द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विल टेक प्लेस. क्लियर विद दिस? सॉरी. So we have now 4 complexes. One we have is complex number 1, that is this. This is NADH reductase. The complex number 1 is NADH reductase. काम क्या है NADH reductase का? ये रिसीव करता है NADH, चेंज करता है इसको NAD पॉजिटिव में. अब देखिए, अगर ये NADH प्लस H पॉजिटिव को NAD पॉजिटिव में चेंज कर रहा है, जिसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन क्या होंगे? रिमूव होंगे. ठीक है, तो क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, बट रिडक्शन किसका हो रहा है? FMN का. और FMN इज रिड्यूस्ड. यहां से 2H पॉजिटिव आर टेकन इनसाइड टुवर्ड्स फ्रॉम द मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स से जो NADH पॉजिटिव बन रहे थे किसमें? क्रैब साइकिल में, वो आते हैं यहां पर, यहां से निकलते हैं ये बाहर. यानी this flamine adenine mononucleotide is transporting the hydrogen from inner side of the matrix toward the intermembrane space. Clear with this? It is increasing the hydrogen concentration in the intermembranous space. Second condition we have now,
whenever two hydrogen are removed, there will be addition, there will be extra 2 electrons remaining, and here are the electrons. So whenever the color used for hydrogen transportation is red, and for electron transportation it is blue. So you can clearly distinguish between the two. ये जो है दो electrons, 2 electrons are accepted by FES. Now one thing more, whenever we talk about the transport of electrons, the transport of electrons are always carried out by in decreasing redox potential condition. यानी यहां से और फाइनली यहां तक जाते हुए इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है उनकी एनर्जी बहुत हद तक जीरो हो जाती है, एंड फाइनली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड विच इज वाटर सिंपली. ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है अब FeS complex. Now this FeS complex is moving ahead. It is a movable thing. Then one thing more. Whenever we talk about from this condition to this cytochrome A to A3 condition, this have a lesser affinity with electrons, and the affinity with the electrons is continuously increasing whenever we move toward the downside of the membrane. इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नीचे की तरफ जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो यहां पर जो ये 8-3 है कॉम्प्लेक्स, इसकी एफिनिटी इलेक्ट्रॉन्स के साथ सबसे ज्यादा है. ठीक है, और यहां पर सबसे कम है, तो एफिनिटी की वजह से भी ये नीचे की तरफ जाते हैं. FeS जो कॉम्प्लेक्स है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा क्यूनोन को, या यू कैन से यूबिक्यूनोन को. दिस यूबिक्यूनोन, नाउ सी दिस यूबिक्यूनोन इज अ मूवेबल molecule. This is continuously shuttling from M side to C side, from C side to M side is continuously shuttling, and this shuttle will make FADH2 to release 2 hydrogen, 2H positive, 2 more protons. ठीक है, 2 और भी प्रोटॉन्स आ गए और चेंज हो गया ये FAD पॉजिटिव में. अभी अब मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा मतलब डिस्कस करेंगे कि NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव है, ये इस कंडीशन में तक आ जाते हैं. ठीक है, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन लास्ट स्टेप. ये लास्ट स्टेप है जहां पर ऑक्सीजन पर्टिकुलरली यूज होती है, बट ये स्टेप पूरी की पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. वो कैसे होता है, तो ये यूबिक्यूनोन जो है ये यहां आ चुका है, और फिर इसके बाद इसने ऊपर से आते हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स को और इन दोनों हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ा यहां पर, और फिर ये आ गया इधर. यहां से इसने 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया बाहर इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इट प्रोवाइड टू साइटोक्रोम बी. ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने आप या प्रोवाइड कर दिया, डोनर है, या इसने रिसीव कर लिया, ये एक्सेप्टर है. सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो थे, नाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द अनदर FeS कॉम्प्लेक्स. अगेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग. शुरू कहां से हुए थे, इधर से. ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सेम नाम इसको इसीलिए दिया गया है कि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं, और ये हमारी जो एक नागिन बन रही है ये इस यहां से लेके और फाइनली इसको बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन. आगे आएगा वो चीज. तो ये FeS जो है, अब ये अगला इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास आए थे उनको प्रोवाइड कर देता है ये एक और क्यूनोन को, और जो फ्री प्रोटॉन्स प्रेजेंट है इनटू द मैट्रिक्स, उन फ्री प्रोटॉन्स को ये क्यूनोन अपने साथ ऐड करता है विद द हेल्प ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट मूव्स टुवर्ड द C साइड. अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड ऑनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स. नाउ देखिए, इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जा रहे हैं, मूवमेंट सिर्फ किसकी हो रही है, प्रोटॉन्स की. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसी के अंदर घूमते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो है फाइनली रिसीव करता है ऑक्सीजन. अब कैसे, साइटोक्रोम C3 अब आता है अगला कॉम्प्लेक्स. ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास प्रेजेंट थे, ये साइटोक्रोम C3 को प्रोवाइड कर देगा. C3 जो है वो साइटोक्रोम C को प्रोवाइड करता है, एंड फाइनली इट रीचेज ऑन टू द 2 इलेक्ट्रॉन CaA3 कंडीशन विच इज हैविंग कॉपर. क्लियर है दिस. अब ये जितने भी साइटोक्रोम थे इनके पास Fe2 पॉजिटिव कंडीशन है, जिन्होंने अभी इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया है, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ये Fe2 पॉजिटिव कंडीशन जो है Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है. क्लियर दिस. नाउ दिस इज हैविंग कॉपर, एंड कॉपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
terminal oxidation, and these electrons are moved out with the help of these two electrons which have lost all of their energy. किसमें? इन हाइड्रोजन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी थी, रिडॉक्स पोटेंशियल की जितनी भी एनर्जी थी, वो सारी की सारी एनर्जी क्या है, बाहर निकाल देते हैं, और प्रोटॉन्स को बाहर निकालने के लिए. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ बी यूज्ड टू ऐड टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स होते क्या? टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, और half O2 and change it into this water. Clear this now? That's why this is the reason we call this a terminal oxidation, because of hydrogen getting oxidized. Hydrogen getting oxidized. See, formation of water. One more thing. That's why the oxygen is known as terminal electron acceptor. Terminal electron acceptor क्यों बोला जाता है? क्योंकि साइटोक्रोम AA3 नीट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि why oxygen is known as terminal इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अब इसमें यहां से लेके और यहां तक के आपको सारे के सारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कॉम्प्लेक्सेस दे दिए जाएंगे, और फिर आपसे ये बोला जाएगा कि बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा कैरियर जो है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर वो at the end provide करता है electrons to the oxygen, and that's why it is known as terminal electron acceptor. So this is the answer. Cytochrome AA3 containing copper is the final electron donor that is responsible for formation of water. Am I clear up till now? Then we have the second. It is known as succinate Q. Reductase complex. Third in this regard we have is QH2, cytochrome reductase. Succinate Q reductase, QH2, ubiquinone H2 cytochrome reductase complex, and finally on the fourth place we have is cytochrome C oxidase complex. This is cytochrome C oxidase, or you can say cytochrome AA3 oxidase complex, which is providing all of the electrons to terminal oxygen for formation of final water. Am I clear up till now? Now यहां से क्या क्या चीजें होंगी? ये जो 2H पॉजिटिव है, ये जो 2H पॉजिटिव है जिसको कंटिन्यूअसली वी आर मूविंग आउट, these protons will be used in oxidative phosphorylation, or you can say chemiosmotic hypothesis, and finally we are going to study this in next video along with the mallet shuttle. कि मैंने बोला था या आप लोगों को पता भी होगा कि NADH जो है that is equivalent to 3 ATP, FADH2 जो है that is equivalent to 2 ATP. तो किस तरह से, ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उसके अंदर 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, बट वो साइटोप्लाज्म में हो रही है. और मजे की बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन इज नॉट इवन गिविंग अ डैम अबाउट दिस NADH. वो उसको अंदर एंट्री नहीं होने देती, ठीक है, बट स्टिल वी आर कैलकुलेटिंग NADH प्लस H पॉजिटिव इज इक्वल टू 3 ATP. तो हाउ, ठीक है ना, उस हाउ का आंसर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए बहुत थैंक यू. फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी आपका मन करे वो कर देना. आई एम वेरी मच हैप्पी विद इंक्रीज ऑफ इवन 1 लाइक, कमेंट, एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. स्टे स्मार्ट, स्टडी हार्ड, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ.